the power 8 theta is equal to 2 cos square alpha minus 3 cos alpha and 3 cos 2 theta is equal to 1. Then find the value of alpha. तो आपको alpha की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. How can you find out the value of alpha? तो फर्स्टली यू हैव टू थिंक ऑफ दैट कि tan to the power 8 थीटा दिया हुआ और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है cos 2 थीटा is equal to 1. तो इसमें भी थीटा और इसमें भी थीटा है, तो हमें थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तभी तो अल्फा में एक्सप्रेशन आएगा और उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं. व्हाट इज रिटन हियर, सॉल्व करेंगे इसको. तो दिस बिकम्स 3 cos 2 alpha 2 theta is equal to 1. So what we can write down 2 cos 2 theta is equal to 1 by 3. This is clear ना. तो cos 2 theta is equal to 1 by 3. What about cos 2 theta? tan में अब इसका फॉर्मूला आपको पता है ना. Yes sir. tan में फॉर्मूला क्या होता है? What we can say 1 minus tan square theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to 1 by 3. You can write down this 1 minus tan square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to 1 by 3. This is clear to all of you or not? Clear है सबको? अब क्या करेंगे? What you need to do? Multiply both side. Means we have to cross multiply this. 3 into 1 minus tan square theta is equal to 1 plus tan square theta. So this you can write down. This point is clear to you na? Okay. Next we can write down 3 minus 3 tan square theta is equal to 1 plus tan square theta. So what we can write down 4 tan square theta is equal to 4 tan square theta. देखो 3 tan square theta को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो दिस बिकम्स 4 tan square theta and 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो दिस बिकम्स 3 minus 1 is equal to 2. तो we can write down 4 tan square theta is equal to 2. So what will be the value of tan square theta? 1 by 2. This point is clear to all of you or not? तो tan square theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 by 2. So here we have to put the value of tan square theta here. Clear है? तो power 8 है, तो what you can write down 32 into 1 by 2 की power 4 हो जाएगा. Clear है सबको? This point is clear to all of you ना? तो tan to the tan theta की power 8 है. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? tan square theta is equal to 1 by 2. तो स्क्वायर आपको 1 by 2 है, तो power 8 मतलब 4 टाइम्स उसका 4 पावर कर देंगे. तो 1 by 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 that is equal to 16. तो 1 by 16 लिख सकते हैं ना. You can write down 1 by 16 is equal to 2 cos square alpha minus 3 cos alpha. This point is clear. 16 to the 32. You can write down 2 cos square alpha minus 3 cos alpha minus 2 is equal to 0. Here you can see that कि this is a form of quadratic equation. ये क्या है? द्विघात समीकरण है, एक quadratic equation है. सबको समझ में आ रहा है? So how can you find out the value of this quadratic equation? By shortcut method. बताए थे ना हम आपको. There is no need of any D method, discriminant rule method, and there is no any need of factorization method. You can easily find out the value of this by applying short method. तो कैसे find out करेंगे भी? Tell me about this. This is 2 and 2. You have to multiply this. 2 to the 4. And इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए. क्लियर है सबको? तो 4 यहाँ पे आ रहा है. -3 कब आएगा? -4 और +1. तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी x की वैल्यू, cos अल्फा मींस x है ना यहाँ पे. तो cos अल्फा की वैल्यू ये -4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +4 और एक आएगा cos अल्फा इज इक्वल टू +1 है तो -1 आएगा. क्लियर है सबको? अब क्या करना? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस? अब जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं. एक्स स्क्वायर मींस cos स्क्वायर अल्फा का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे. तो कोफिशिएंट क्या है? 2. तो वी हैव टू डिवाइड 4 by 2. तो 4 by 2 इज इक्वल टू 2 एंड दिस बिकम्स -1 by 2. तो एक आएगा आपका cos अल्फा इज इक्वल टू 2. तो क्या cos अल्फा की वैल्यू 2 पॉसिबल है? नो, बिकॉज वी नो दैट द रेंज ऑफ cos अल्फा lies between -1 to 1. क्लियर है? तो cos अल्फा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है. सो वी कैन नॉट से दैट कि cos अल्फा कभी 2 होगा. तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. यू हैव टू से दैट दिस कैन नॉट बी पॉसिबल हियर. दिस इज क्लियर ना? यस. यू वांट टू से आस्क समथिंग. क्या ये शॉर्ट मेथड है ना, आपको बताए थे ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में.
नहीं समझ में आया? शॉर्ट मेथड नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप फैक्टराइजेशन से कर लो। देखो अभी समझा देते हैं इसको। ये क्या आपका 2 cos अल्फा मींस x स्क्वायर में समझो, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप cos अल्फा को x मानेंगे तो ये इक्वेशन आपकी आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बताए थे ना आपको a और c को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आपका a, c मींस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका यहाँ पे 2 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 2 है, उसको मल्टीप्लाई करना किया जाता है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4। अब उसको इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं कि ये -3 आना चाहिए, क्लियर है? तो 4 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि -3 आएगा, तो -4 और +1 लिख सकते हैं, इसलिए कि -4 × 1। इसको मल्टीप्लाई करने पे इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये 4 आना चाहिए, ठीक है? एज वेल एज अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो -3 आना चाहिए, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स -3 एज यू कैन सी। तो -4 + 1 यू कैन राइट डाउन, दिस बिकम्स -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे माइनस में है उसको प्लस में लिखेंगे तो +4 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 होगा तो यही आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन यहाँ पे यू कैन से हियर कि कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 नहीं है, 2 इज गिवन, तो जो भी कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो 2 आपका कोएफिशिएंट है तो 4/2 विल बी 2 एंड -1/2, तो यहाँ से दो आंसर्स आएंगे। क्लियर है सबको? तो we can say that the cos alpha is equal to 2 cannot be possible in this case. So what we can say, cos alpha is equal to -1/2 is possible only. So what is the general term of for this cos alpha is equal to -1/2? What can you write down? Tell me about this. Yes, anyone? General term. Tell me about the general term. Cos alpha is equal to -1/2. n/6. n/6. 2n/pi plus minus alpha. 2n/pi plus minus. minus. तो आई एम आस्किंग नॉट अबाउट अल्फा, आप कंप्लीटली एंगल बताओ ना। -π/3। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे? ओके टेल मी व्हाट दिस cos alpha is equal to, ये क्या लिखेंगे इसको? 2π/3। इसको क्या लिखेंगे? एक मिनट रुक जाओ, आपने क्या बोला? -π/3 से, तो cos of -π/3। सबको क्लियर है ना? लिख सकते हैं ना सबको? कितने लोग बोल रहे हैं कि यस सर वी कैन राइट डाउन दिस? यस, रेज योर हैंड। और सर पाई माइनस में और आएगा स्टार्टिंग में। हु ऑफ यू आर सेइंग कि यस सर यू कैन राइट दिस? नो सर, कोई भी नहीं बोल रहा है अभी, तो अभी कौन बोल रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? व्हाट इज दिस? दिस इज -π/3 इज आल्सो लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -π/3 किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की कभी वैल्यू नेगेटिव होती है? नो। तो हाउ कैन यू राइट डाउन दिस -π/3? You cannot write down this. This is clear to you or not? Yes. So what we can write down? Cos of pi minus π/3. This is clear na? So Yes. cos of pi minus π/3 means this would lie in the second quadrant, that you can say. This is clear to you or not? Yes, sir. Clear है ना? So alpha is equal to what is general term for this? 2n pi plus minus, and this is pi minus π/3 will be how much? 2π/3. So this will be your answer for the general term where n belongs to integer. This is clear to you or not? Clear है सबको जी? Yes. तो ये आपके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तो शायद आप लोग बना ही लिए होंगे। एज यू ऑलरेडी cos x mod of cos x is equal to शायद 1/2 था, है ना? Yes. 1 था। Mod of cos x is equal to, this is very clear that all of you know. काफी ज्यादा इजी है। इजी है ना? Yes. Or you can say cos theta is equal to 1. This is given. What do you need to understand in this? The mod is given, and if we can say कि if anything in mod x is equal to something a, so what we can write down the value of x. X is equal to plus minus a. Yes. So similarly you can write down कि cos x is equal to plus minus 1. This point is clear to all of you or not? Yes. But you have to
you have to find out the solution of, yes, good morning, good morning. You have to find out this, the common solution for cos x is equal to 1 as well as cos x is equal to -1. तो cos x is equal to 1 के लिए आपको कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, एज वेल एज cos x is equal to -1 के लिए फाइंड आउट करना होगा. तो आप दो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उन दोनों का कॉमन आप चेक करेंगे कि कॉमन जो है जनरल सोल्यूशन क्या होगा. एक आपका ये मेथड है. अदरवाइज दूसरा मेथड, सेकंड मेथड इज, वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है, वो डायरेक्टली दोनों का कॉमन आ जाएगा. कैसे? व्हाट इज मॉड ऑफ cos x. आप लिख सकते हैं कि कोई भी चीज स्क्वायर रूट में होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x अगर हम लिखें तो ये आपका मॉड ऑफ cos x हुआ होगा. एज यू कैन सी, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? इज इक्वल टू 1 यू कैन राइट डाउन. अब क्या कर दो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर कर दो. दिस बिकम्स व्हाट, cos स्क्वायर x is equal to 1 का स्क्वायर मिल के 1. तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, cos स्क्वायर x is equal to, अब 1 को cos स्क्वायर के ही टर्म में लिखना है, इसलिए कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का यहाँ पे फॉर्मूला जाएगा. क्लियर है ना सबको? तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, 0. यू कैन से cos स्क्वायर 0 डिग्री. दिस इज क्लियर टू यू ना? ओके. तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 0 डिग्री मींस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा. जनरल टर्म आपको बताए थे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा. क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. दिस यू कैन राइट डाउन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट यू वांट टू राइट यू कैन राइट n अबाउट n. क्लियर है ना? तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 0. So this becomes x is equal to what, n pi plus minus 0. You can write down n pi where n belongs to integer. Clear है? तो n pi where n belongs to integer. So this is the value of x here. ये आपके x की वैल्यूज हो जाएंगे. You can write out this part. एक दो क्वेश्चंस और हैं हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है inverse trigonometric function. Just write down this part. सर ये इन्वर्टेड है किसी का साइन होता है? Yes. और ये वर्सेस n belongs to I. हाँ, for all भी बोल सकते हैं, for all n belongs to integer, for all भी बोल सकते हैं आप. ठीक है ना? ये एक बार आप फिर पूछे थे शायद पिछले क्लास, कभी एक बार किसने पूछा था इसके बारे में. यस, हमको याद है पिछले बार. One question was, just write down this part. Write down this part. Next question you have to write down tan and try to solve this question. Tan pi by 2 sin theta. थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? इज इक्वल टू cos cot pi by 2 cos theta. Cot pi by 2 cos theta. Tan pi by 2 sin theta is equal to cot pi by 2 cos theta. This point is clear now? Yes. What we can write down? जल्दी कीजिए इसको सॉल्व. सर साइन सर पाई में मल्टीप्लाई है 2 में मल्टीप्लाई. Yes. Question is this. तो सब लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? पिछले वाले क्वेश्चन में इसको कीजिए सब लोग जी. अरे साइन मल्टीप्लाई पाई में 2 में किसमें? मल्टीप्लाई नहीं, आर्गुमेंट है ये.
मतलब साइन इसके बाद ये देखो tan का आर्गुमेंट है और ये cot का, ये जो है π/2 cos थीटा, ये cot का आर्गुमेंट है। समझ में आ रहा है ना व्हाट यू नीड टू डू दिस? यस। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमारा मेन इसमें मोटो क्या है कि इसको, ये tan में है, लेफ्ट हैंड साइड में ये tan में आपका लिखा हुआ है, फिर आपको cot में राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो व्हाट यू नीड टू डू, इसको भी हम tan में कन्वर्ट करेंगे। तो यू नो अबाउट दिस कि tan π/2 minus theta is equal to cot theta. You can write down this na. So tan, solve this, you can solve tan π/2 sin theta is equal to, what is the value of cot here, to tan π/2 minus π/2 cos theta. So this you can write down, I think. Yes, this is clear ना? tan को हम eliminate कर देंगे, तो you can write down π/2 sin theta is equal to π/2 minus π/2 cos theta. This point is clear or not? What we can write down, π/2 sin theta plus π/2 cos theta is equal to π/2. π/2 will be cancelled out, ठीक है? So what we can write down, sin theta plus cos theta is equal to 1. This is clear ना? अब क्या करेंगे आप, निकालना क्या है? थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, कि थीटा के लिए जनरल टर्म आपको फाइंड आउट करना है। यस, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा इसका जनरल टर्म, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? कर सकते हैं ना? आपको ये बताया थे इसके बारे में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू cos ऑफ x माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ये हो जाएगा √2, तो इसको ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर है? 1/√2 किसका होता है, cos π/4 का। दिस इज क्लियर ना? तो cos x minus π/4, I think this is clear. तो what we can write down, x minus थीटा था ना, सॉरी थीटा ही लिख रहे हैं यहाँ पे, थीटा minus π/4, तो थीटा minus π/4 you can write down is equal to 2n pi plus minus π/4, तो थीटा is equal to 2n pi plus minus π/4 and plus π/4, and π/4 plus π/4 कितना हो जाएगा, π/2, where n belongs to I। समझ में आया सबको? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। आप लिखेंगे √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू क्या होगी दी? इसके लिए जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसके बाद हम लोग इन्वर्स से स्टार्ट करेंगे। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2। ये समझ में आया ना सबको, इसका जनरल इक्वेशन? यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना, और नॉट? समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ओके, इसका आप फाइंड आउट कीजिए। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि आपको n की वैल्यू आप पुट करोगे तो नहीं पता चल पाता मैक्सिमम केसेस में। बहुत सारे केसेस में पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में यू डोंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो वो केस हम लोग बोल सकते हैं कि आप जो है नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं वैल्यू। बाकी ये इस तरह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो, इसलिए बिकॉज कि ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है इसमें, और दूसरा सेकंड नंबर की ये sin थीटा प्लस cos थीटा में ये वाला यूज हो रहा है। या तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो, या आप क्या करेंगे, आप इसको √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करके उस तरह से भी कर सकते हैं। दो मेथड बताए थे ना इसको करने का। आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। क्यों? इसलिए कि जो साइन का कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग देखते हैं, और जो cos का कोएफिशिएंट होता है उसको देखते हैं, उसको स्क्वायर करके, ठीक है, और ऐड करते हैं, और उतने से ही डिवाइड करते हैं इसमें। tan इनवर्स का आर्गुमेंट में 1 कैसे आया इसमें?
फॉर्मूले में B upon A. B upon A होता है ना, Coefficient, yes sir. तो देखो A cos x plus B sin x समझ लो इज इक्वल टू C, ऐसे था ना आपका लिखा हुआ, तो व्हाट वी कैन से, हम बताए थे ना अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इनटू cos ऑफ, ये आपका हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू C, ये आपको फॉर्मूला बताए थे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो भी कोई बात नहीं, इफ यू नॉट वांट टू, हम आपको बताई थी कि मैथ्स में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, देयर इज नो एनीथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, कोई चीज याद नहीं रखना है, बस आपको ये नहीं याद रखना है, नहीं आपके माइंड में कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम a और b दोनों का स्क्वायर करके और प्लस करेंगे और अंडर रूट में जो भी चीज आएगा उससे डिवाइड करना है आपको, और डिवाइड जब कीजिएगा तो ये 1/√2 हो जाएगा 1/√2, और इसको आप बनाएंगे 1/√2 और 1/√2, इसलिए या तो आप sin a प्लस b में बना लें या cos a प्लस b में, तो ये देखो 1/√2 से बनाएंगे, दूसरा भी मेथड डिस्कस कर देते हैं आपको, तो ये 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्लियर है, और √2 से आप डिवाइड करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा बैलेंस करने के लिए, क्लियर है सबको। अब देखो 1/√2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट डाउन, 1/√2 के बदले में आप या तो cos लिख लो, sin a into cos b प्लस cos a into cos मतलब sin a into cos b, ऐसे, या आप ऐसा कर ले सकते हो, देखो cos a into cos b, इसको भी cos में आप चेंज कर लो प्लस sin a into sin b, ऐसा कर सकते हो, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, इसको भी sin में कर लो, ये क्या हो जाएगा sin π/4 into sin थीटा एंड प्लस ये हो जाएगा cos π/4 into cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट, समझ में आया, ये देखो cos a into cos b प्लस sin a into sin b, ठीक है, तो cos a minus b, तो cos π/4 माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस π/4 लिखो, दिस इज क्लियर ना, तो आप थीटा माइनस π/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, या π/4 माइनस थीटा, इसलिए cos के आर्गुमेंट में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे 1 था, यू कैन से दैट 1/√2, दिस पॉइंट इज क्लियर ना, तो अब 1/√2 को सेम है, देखो ये चीज आया ना cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2, और इसको जो है आप 1/√2 को cos π/4 से एलिमिनेट कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबको समझ में आया ये, कीजिए जल्दी इसको, जल्दी कीजिए, फास्ट, डू इट फास्ट। आ गया सबका आंसर? ओके, वो वाला क्यों नहीं लिख रहे आप, साइन थीटा कंप्लीटली आपने नहीं लिखा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, कोई डाउट? ओके, इसको देखिए आप, √3 और ये क्या है आपका 1 है, तो अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्लियर है ना, तो ये दिस बिकम्स 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, यू कैन राइट, तो 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख लो √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू 2, क्लियर है ना, अब √2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, समझ में आ रहा है ना, इट इज क्लियर टू यू और नॉट, क्लियर है सबको? अब देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू नीड टू डू, √3/2 को आप cos के फॉर्म में लिख लो, तो दिस बिकम्स cos
पाई बाय 6 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय 6 इंटू साइन थीटा। तो सेम एज इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6, Yes, sir. इसलिए कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos थीटा माइनस पाई बाय और 2 से 2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो cos तो ये कितना हो जाएगा? cos इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 नहीं होगा। नहीं सॉरी मतलब cos cos 0 की zero वैल्यू है। ये अच्छा ठीक है, cos 0 की वैल्यू बन जाएगी। cos 0 की वैल्यू 1, तो cos थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। समझ में आया? तो व्हाट वी कैन से थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब देखो प्लस माइनस ये 0 डिग्री के साथ में है, ये प्लस पाई बाय 6 होता है Yes. when n belongs to I। क्लियर है सबको? Yes, दिस sir. इज क्लियर टू यू और नॉट? हाइट एंड डिस्टेंस क्यों बोला गया इसको? बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट यू कैन से कि एक पोल है और पोल की हाइट है, तो ये हो गया हाइट और डिस्टेंस, मतलब ये एंगल बना रहा है, पॉइंट है ग्राउंड पे उससे 30 डिग्री, तो उस पॉइंट से और इस पोल का के टॉप बॉटम का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इस पोल के टॉप का डिस्टेंस क्या होगा, यही पूछता है, इसलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है जी? तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट कम्स अंडर हाइट एंड डिस्टेंस। फर्स्ट इज एंगल ऑफ elevation, angle of elevation. So try to understand this point. What is angle of elevation here? Anyone can tell me what is angle of elevation properly? Yes. What you can say? सर जो बेस होता है कि- सर किसी भी टावर हाँ। या कोई ऑब्जेक्ट का, तो ऊपर की तरफ जब एंगल बनता है प्लस में, तो सर उसे Yes, you are right. तो जब भी देखो समझो यहाँ पे means horizontal level के you can say that the angle made by a line of sight with the horizontal level above the horizontal level is known as angle of elevation. So this is your horizontal level. Suppose this is your horizontal level. Horizontal level मतलब समझ रहे हैं आप? Suppose you are sitting on the chair. तो इन दैट केस दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल। इसके ऊपर जो भी बनेगा एक लेवल हम मानते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू एडजस्ट योर एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू दैट, एंड यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू सपोज द हॉरिजॉन्टल लेवल देयर। तो आपको सपोज करना है हॉरिजॉन्टल लेवल वहां पे, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, समझ में आ रहा है आपको? तो हॉरिजॉन्टल लेवल आप समझ लो ये होता है लाइन ऑफ साइट, मींस ऑब्जर्वर जो है आपको यहां से देख रहा है, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे क्या है, स्टैंड अप है, और ये जो है किसी चीज को देख रहा है, किसको देख रहा है, कोई एक पोल बिल्डिंग हो सकती है या कोई भी एक बड़ा टावर हो सकता है, तो इसको देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट ये हो गया किसका, ऑब्जर्वर का। लाइन ऑफ साइट मींस व्हाट, ये स्ट्रेट लाइन जो है वे में देख रहा है, मींस उसका जो पाथ है किसका, ऑब्जर्वर का देखने का, यू कैन से दैट कि जो पाथ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेटली यू कैन डिफाइन कि वो पाथ स्ट्रेट होगा और वो उसका लाइन ऑफ साइट होगा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। तो ये लाइन ऑफ साइट एज वेल एज जो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एंगल बनता है, प्रोवाइडेड दैट इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, इट शुड बी अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये कहाँ होना चाहिए, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। So this becomes angle of elevation. This point is clear to all of you or not? Yes, sir. सबको clear है? Second number part is angle of depression. आपको समझ में आ रहा है, the angle which is made in between, made by an observer, ठीक है, with the horizontal, you can say with the horizontal, above the horizontal level is known as angle of elevation. Angle of depression is what you need to understand here. Angle of elevation हो गया आपका angle of depression.
हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं क्रॉस एलिवेशन। देखो उन्नयन कोण इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनयन कोण। दिस इज अवनयन कोण, समझ में आया ना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज उन्नयन कोण एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अवनयन कोण। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, जब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और ये आपका लाइन ऑफ साइट, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, राइट अंडरस्टैंड हियर। लाइन ऑफ साइट मतलब कोई ऑब्जर्वर क्या है, किसी ऊंचाई पे, किसी हाइट पे क्या स्टैंड अप है, वहां से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो जो बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल एंगल बनेगा वो आपका होगा जाएगा थीटा, और ये थीटा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस थीटा वुड बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज क्लियर ना? दिस इज क्लियर और नॉट? दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया? तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। सबको समझ में आया ना? तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होगा। ऑब्जर्वर इस पे यहाँ पे यहीं पे स्टैंड अप है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है किसी हाइट पे होगा और हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल होगा थीटा वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ओके, डोंट टॉक इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक ट्री है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, ठीक है, एंड द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इन सच अ वे दैट, ठीक है, ये आपका एक ट्री है, समझ में आ रहा है? तो आपको बोला जा रहा है, ठीक है, एक ट्री है एंड ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, विंड चली, तेज खूब हवाएं चली और ये ट्री जो है वो टूट गया, ब्रोक हो गया, ब्रोकन बाय विंड, ठीक है। तो हवाएं चलती है तो क्या होता है, ट्री वगैरह टूट जाते हैं, पत्ते या टहनियां, ब्रांचेस वगैरह उसके टूट जाते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। जब ब्रांचेस टूट जाते हैं तो ये उस तरह से नहीं टूटा, ब्रांच इसका किससे अलग हो जाए, ये किस तरह से टूटा, ये इसी में जुड़ा रह गया, ये यहाँ से टूट गया, इसका ये ब्रांच जो है कमजोर था और ये टूट गया और ये ग्राउंड पे ऐसे टच करने लगा। समझ में आ रहा है सबको? तो क्वेश्चन इज दिस कि जब ग्राउंड पे ये टच करने लगा तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम इट्स बॉटम, ठीक है। तो वो अपने बॉटम से 20 मीटर डिस्टेंस पर उसका जो टॉप ऑफ द ट्री जो है वो टच कर रहा था। तो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट कितनी है ट्री की। तो आप लोग निकाल सकते हैं पहला क्वेश्चन, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। तो देखो क्वेश्चन लिख लो, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, इसमें क्वेश्चन काफी बड़ा होता है। अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड in such a way that its top touches the ground, making an angle of 30 degree, making an angle of 30 degree with the ground, making an angle of 30 degree with the ground, and located at a distance of 20 meter from its foot, and located at the distance of 20 meter from its foot, then find out the total height of the tree, then find out the total height of the tree. This point is clear ना? तो all of you find out this part, सभी लोग इसको find out करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? तो ये आपका कितना एंगल बना रहा है, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड,
दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो ये 30 डिग्री है आपका ग्राउंड से बना है। ये कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस इज 20 मीटर। Yes, sir. दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर। समझ में आ रहा है सबको? तो हाइट ऑफ द ट्री आपको फाइंड आउट करनी थी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यस सर 20√3 आएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये जब 20 है तो ये आपको फाइंड आउट करना है, दिस एंड दिस, ये टोटल हाइट होगा ट्री का। सबको समझ में आ रहा है? तो ए बी एंड सी। तो सबसे पहले ये देखो 30 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा? बेस। समझ में आया? तो tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ रहा है? तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। तो परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस कितना होगा? √3। और जब ये 1 हुआ और ये √3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। बताओ जल्दी जी, बताया ना सबको? 2 हो जाएगा। शॉर्ट मेथड बता रहे हैं ना आपको, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी शॉर्ट मेथड इसमें मिक्स कर दिए। ठीक है, समझ में आया ना कैसे? ये 1, ये √3 हुआ और ये 2 हुआ। समझ में आया? तो देखो जब √3 के लिए 20 मीटर है, ठीक है जी, √3 के लिए 20 मीटर है, तो 2 + 1 ये कितना है? 2 + 1। 3 के लिए कितना होगा? तो 3 के लिए आपको निकालना है, तो 1 के लिए सबसे पहले निकालोगे। 1 के लिए कितना हो जाएगा? 20/√3। तो √3 के लिए क्या होगा? 20/√3 × 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है कैसे? इसलिए कि 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वल टू 20√3। समझ में आया? ऐसे ही सब लोग किए हैं, इतना शॉर्ट मेथड से किए हैं या लंबा मेथड फॉलो किए? कितना लंबा मेथड फॉलो किए हैं? शो मी दैट। ज़्यादा टाइम 2-3 लाइन भाषा। अच्छा ठीक है ना, ये समझ में आया? ये आप ट्राई करो, कोशिश करो समझने की, इससे काफी ज्यादा फास्ट आंसर आते हैं इस तरह से। समझ में आया? बाकी जो आपने बचपन में तो पढ़ा है tan 30 = सर p/b, थोड़ा सा नया सीखना चाहिए है ना हमेशा। कैसे आया है? ये √3 कैसे आया? ये वाला कहाँ से नहीं समझ में आया? यहाँ से नहीं समझ में आया? यहाँ से नहीं समझ में आया? ओके, tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 30 के में क्या होता है? p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 1, बेस कितना हो जाएगा? √3। तो जब ये 1 होगा और ये √3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। पता है ना √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? तो अब देखो √3 के लिए कितना मीटर है? 20 मीटर है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 20/√3। तो आपका ये टोटल कितना हाइट ऑफ द ट्री? ये 1 है और प्लस 2, 2 + 1 3। तो 3 के लिए कितना होगा? 20/√3 × 3, 20√3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया जी सबको? क्लियर है? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि A B C, ऐसे होता है ना कि A और B मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, B और C मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, और C और A मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो अगर तीनों मिलकर किसी काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे? तो इसका शॉर्ट मेथड जो है आपको वैसे ही बताया था, विदिन फ्यू सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? इसी तरह से खैर उसका आपको यूज नहीं है, ये समझ में आया ना? 1 के लिए 20/√3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका? 20/√3 × 3। या तो आप डायरेक्टली अगर आपको पता है कि 3 होता है √3 × 3 तो आप इसको कैंसिल करके 20√3 लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा? 20 × 60, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो 20 × 60 अपॉन √3 का रेशनलाइजेशन आप करना बच्चा की तरह, क्लास 9th में जैसे करते हैं ना, 60/√3 × √3 सर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है। तो अभी आपका हो जाता है 60√3 और √3 × √3 हो जाता है ये 3, और 3 से ये 20। अब देखो बचपन में क्या होता है, 9th में आपको कॉपी भरनी होती है 10th के बोर्ड में, तो बड़ा तो होना ही चाहिए ना कि कॉपी भरा हुआ लगे ताकि आपको मार्क्स मिले, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, यू हैव टू सेव योर टाइम बिकॉज हियर योर टाइम इज सो मच वैल्यूएबल। ठीक है, तो देखो दिस बिकम्स व्हाट? 20√3, यू कैन से दैट 20√3। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो दिस बिकम्स 20√3। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, देखो समझो कि एक बर्ड है, here is your bird,
ये बर्ड है, ठीक है। और बर्ड जो है वो जब इस पोजीशन पे थी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था, समझो आप यहाँ पे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के बाद बर्ड जो है कहां चली गई? आफ्टर 2 सेकेंड्स बर्ड यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मेनली फिगर अगर बना देंगे तो आप तो कर ही लेंगे, इसका मेनली क्वेश्चन में ही छुपा होता है। फिगर अगर हम बना देंगे इसका तो आप कर सकते, आई नो अबाउट दैट। क्वेश्चन में ही आपको पता है क्वेश्चंस का कैसे फिगर बनाएंगे, क्लियर है ना? इस बार भी आपको आया था हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, काफी इजी थे, काफी इजी आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो लिख लो, अ बर्ड इज फ्लाइंग, या नहीं ऐसे लिख लो, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। अ बर्ड इज सिटिंग bird is sitting on the top of a tree. The angle of elevation, of a bird with the ground is 60 degree. With the ground is 60 degree. With the bird at a ground is 60 degree. ठीक है, 60 degree. Bird starts flying. Bird starts flying. After 2 seconds, his heart भी लिख सकते हो as you wish. His or her angle of elevation. अब हम लोग थोड़ी पहचान सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ऐसे मतलब यू कैन से कि his or her according to that, ठीक है ना। तो her angle of elevation changes to 30 degree. 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 मतलब 60 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है। 230 डिग्री. The height of the bird from the ground is 200 meter. 200 meter. Then find out the speed of the bird in meter per second. Then find out the speed of the bird in meter per second. Then find out the speed of the bird in meter per second. Then find out the speed of the bird in meter per second. देखो ये पहले कितना था, ये आपका कितना मीटर है 200 मीटर. दिस इज गिवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. दिस इज आल्सो 200 मीटर. दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको जी? समझ में आया? ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री. इट इज गिवन. समझ में आ रहा? तो आपको क्या करना, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए. मींस अगर ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे तो 2 सेकंड्स में इतना ट्रैवल की, तो ये आपका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड. क्लियर है ना सबको? स्पीड समझ में आ जाएगा. तो अब देखो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा. इसको मान लो सी मान चुके आप DE. तो देखो अगर CD आपको फाइंड आउट करना है स्पीड निकालने के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. CD फाइंड आउट करोगे तभी तो आप स्पीड निकाल पाओगे, बिकॉज डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम वुड बी स्पीड. क्लियर है? तो ये आपका BE हो जाएगा. तो
तो b जो है b फाइंड आउट करेंगे इसका, इट मींस दैट, और b कौन से ट्रायंगल में है, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में ये कितना है, 200 मीटर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? तो ये tan 60 कितना हो जाएगा, p/b, तो ये 1/√3। सबको समझ में आया कि √3 होगा ना, ये tan 60 √3 होता है, तो √3 और ये अपॉन में 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2। क्लियर है सबको जी, समझ में आया? तो ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। √3 के लिए कितना मीटर है, 200 मीटर है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 200/√3 मीटर। क्लियर है, कोई डाउट? तो इसकी लेंथ आपकी आ गई 200/√3, इसकी लेंथ। समझ में आया? क्लियर है ना सबको? इसकी लेंथ AB की लेंथ आ गई आपकी कितनी, 200/√3। अब ये वाले ट्रायंगल में चलो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये कितना है, ये भी डिस्टेंस, जब ये 200 होगा तो ये भी 200 होगा। कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग कर रही है, सेम डिस्टेंस ऊपर ग्राउंड से। क्लियर है ना? अब इसके बाद जब ये 200 है तो इस वाले ट्रायंगल में चलो, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। ये आपका 30 डिग्री है, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। तो देखो 1 के लिए कितना है, 200 है इसमें, तो 1 के लिए 200 है, तो √3 के लिए कितना होगा, 200 इंटू √3। क्लियर है ना सबको? तो ये पूरा डिस्टेंस आपका आया कितना, 200 इंटू √3। समझ में आया सबको जी कि नहीं आया? 200 इंटू √3। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200√3 माइनस 200√3 माइनस 200/√3। टेक द एलसीएम ऑफ दिस, यू हैव टेक द एलसीएम ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 600 और माइनस दिस बिकम्स 200। समझ में आया ना? दिस बिकम्स 400/√3। क्लियर है ना? दिस पॉइंट इज क्लियर। और ये हो जाएगा आपका इनटू, और ये आपका डिस्टेंस हो गया, दिस इज योर डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका है 400/√3 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो ये देखो 200/√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो 200√3/3 मीटर पर सेकंड, डिस्टलाइजेशन करने के बाद। सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है? ये समझ में आया कैसे किए? तो आपको ऐसे ही करना है। तो स्टार्टिंग जो बीच में जो मतलब जो लाइन है अंदर, हाँ, वो वाली एक बार फिर से बता दो सर। ये वाला, नहीं, जो ये 200/√3 ये आए, ये कैसे आया? इक्वल्स टू मतलब जो आ गया ऐसा, मतलब ये कैसे आया, 200/√3। देखो अब ये वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं ना, ये ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री है पूरा एंगल। सबको क्लियर है ना? ये पूरा एंगल कितना है जी, 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये tan 60 कितना हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा इस ट्रायंगल के लिए। तो अब देखो tan 60 कितना होता है, √3। तो √3 ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखो √3 के लिए कितना है, 200 है, तो 1 के लिए कितना होगा, 200/√3। क्लियर है? ये इस ट्रायंगल के लिए हुआ। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AB 200/√3। आप पता है अगर आप ABC ट्रायंगल में जाके tan 60 = 200 समथिंग करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यही आएगा फिर भी आंसर, अगर tan 60 करोगे तब भी यही आपका आंसर आएगा। क्लियर है ना पॉइंट? ये आपको शॉर्ट मेथड बता रहा है, सबका शॉर्ट मेथड होता है, सबका। एडवांस मैथ हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग मेथड समझते हैं तभी तो शॉर्ट मेथड भी समझ पाएंगे। सबका शॉर्ट मेथड होता है, रेशियो विद इन फ्यू सेकंड्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, ये देखो √3। अब ये √3 कैसे आया, ये √3 ये पूरा का हुआ, ये पूरा √3 है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये पूरा डिस्टेंस, इसलिए कि ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, ADE। दिस ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल है। ADE में tan 30 कितना होगा, 1/√3। तो ये 1 है, √3 ये पूरा हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? तो 1 के लिए कितना है, 200 है, तो √3 के लिए कितना होगा, 200 इंटू √3। ये √3 पूरा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं √200। तो इस डिस्टेंस में से और इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ये B डिस्टेंस आ जाएगा
तो b डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 600 minus 200 400 upon root 3 दिस विल गेट और स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा d समझ में आ रहा है ना तो 400 upon root 3 हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 2 सेकंड तो 400 अपॉन 2 ये हो जाएगा 200 अपॉन रूट 3 या आफ्टर रेशनलाइजेशन यू कैन राइट डाउन हाउ मच 200 रूट 3 अपॉन 3 यू कैन से ना यस और कोई क्वेश्चंस किसी का क्वेरी अब दूसरा क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आता है कि दो एंगल्स जो हैं एक दूसरे के क्या है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में आता है ऐसे देखो ये समझ में क्वेश्चन ये आएगा आपका कि पोल है ठीक है एक पोल है इस पोल से एक पॉइंट पे जो एंगल होगा ठीक है उस एंगल से ये एंगल दोनों क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अब इसमें देखो कौन एंगल ज्यादा होगा कौन एंगल कम होगा बता सकते हैं आप ये एंगल क्या होगा ये एंगल कम होगा और ये एंगल ज्यादा होगा ठीक है तो हमें ये नहीं फाइंड आउट करना मैं आई एम टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री लिखा हुआ होता है तो आप बहुत बच्चे इसको 60 डिग्री लेते हैं इसको 30 लेते हैं नहीं ये वाला इंक्लिनेशन क्या होगा ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे इंक्लिनेशन कम होता जाएगा ठीक है ना जी ए बी सी इस पे दो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है जो हर एक वैरायटीज के हम कवर करा रहे हैं अभी 3 वैरायटीज और है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में 3-4 वैरायटीज तो वो एक बलून वाला है एक रेक्टेंगुलर पार्क वाला है ठीक है 3-4 वैरायटीज अभी है इसमें एक सन्स ऑल्टीट्यूड वाला है समझ में आ रहा है ना ये एक वैरायटीज है इसमें आपको ये एक पोल है ठीक है तो ये इसकी हाइट h आपको दी गई है बता देते हैं और ये आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से एक पॉइंट है ये आपका C हो गया और ये D एक पॉइंट है ग्राउंड पे ये BD आपको दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ क्लियर है सबको समझ में आ रहा है और एक पॉइंट जो है मतलब पॉइंट C जहां पे एंगल बन रहा है मतलब वो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जहां पे डिस्टेंस 4 मीटर है उससे अवे है वो पॉइंट C और उसका इसके फुट से इस टावर के फुट से जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 9 मीटर द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 9 मीटर तो ये टावर या पोल मान सकते हैं आप तो h इज इक्वल टू टावर तो आपको बोल रहे हैं कि दिस टावर मेक्स एन एंगल at point D on the ground which is 4 meter away from the foot of the ground is complementary to the angle which is made by a tower on the ground which is away at a distance of 9 meter from the foot of the tower. So then find out the height of the tower. तो आपको find out करना है height क्या होगा. तो height of the tower. Find the height of the एंगल भी दिए ना सर tower. एंगल बोल रहे हैं कि एंगल्स इनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं. हाँ, the angles are given complementary of each other. कि जो एंगल बना रहा है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. समझ में आ रहा है? कितना आंसर होगा जी? हाइट कितनी आ जाएगी? ये काफी इजी क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन लिखना चाहेंगे? डू यू वांट टू राइट द क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. Yes, yes, you are right. समझ गया आप क्वेश्चन को. Yes, लिखिए. A tower circuits. A tower circuits. An angle of elevation. An angle of elevation at a point on the ground. At a point on a ground which is 4 meter away from the foot of the tower, which is 4 meter away from the foot of the tower, is complementary huh? which is away at a distance of 4 meter, at a distance of 4 meter away from the foot of the tower, away from the foot of the tower. Clear any point? Away from the foot of the tower.
is complementary to the angle subtended at the other point on the ground which is 9 meter away from the foot of the tower, then find out the height of the tower. तो हाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है जी, व्हाट यू नीड टू डू। तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एक आपका थीटा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको जी? अब देखो tan थीटा इसमें अप्लाई करोगे, tan थीटा क्या होता है p बाई b, तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। परपेंडिकुलर क्या है, इसकी हाइट मान ली है टावर की h अपॉन b, बेस इज 4, इट इज गिवन 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज व्हाट, इन ट्रायंगल दिस ए बी सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, ये छोटे वाला ट्रायंगल हो गया, ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो बड़ा वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, tan ऑफ 90 माइनस थीटा is equal to what we can say AB upon BC, AB is h upon BC is 9. This is equation number 2. क्लियर है सबको? तो ये हो जाएगा tan थीटा into tan 90 minus थीटा। ये देखो ये क्या हो जाएगा tan 90 minus थीटा, this becomes cot थीटा। This point is clear। और tan थीटा into cot थीटा will be what, how much, 1, तो 1, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। हमें हाइट निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 into 2 will be what, ये आपका 1 हो जाएगा। 1 is equal to h into h, h square upon 36, तो h square is equal to 36 into 1 will be 36, तो h is equal to कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 होता है, but we can say that कि the height of the tower can never be negative, तो so h is equal to 6 meter is possible here only। तो I will discuss the next part of this in the next class with all of you। क्लियर है ना ये पॉइंट? इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्लास में अभी इसके 3 वैरायटीज हैं, वो डिस्कस करने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी आपके कोई डाउट जो हो यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क टू मी दैट। क्लियर है ना?